morning students. So chapter number 7 coordinate geometry is going on and topic is application of area of triangle formula. In our previous class we had discussed how to find out area of triangle by giving coordinates. We have studied two methods. First one is by formula and second method is by applying values in pattern, as I told you, x1, x2, x3, x1, y1, y2, y3, y1, and then we will cross multiply to get the answer. Okay, so both the methods are correct. As you wish, you can apply any of them. Now moving ahead in this topic, application of area of triangle formula. Now see this example. For what value of a, the point a1, 1 minus 1 and 11, 4 are collinear. What are collinear points? Those points which lie on a same straight line. वो points जो same straight line में lie करते हैं वो points collinear points कहलाते हैं. And if points are collinear, then can we say that triangle is formed with these three points? अगर points collinear है, then triangle is not formed. Triangle form होगा ही नहीं as points are collinear. And if points are collinear, we know that triangle is not formed. It means area of triangle is equal to 0. That means अगर आपको points collinear दिए गए हैं तो आप solution इस तरीके से करेंगे as points P, Q and R are collinear. So area of triangle PQR is equal to 0. Please keep it in mind, if points are collinear, then triangle is not formed. It means area of triangle is equal to 0. Area of triangle is equal to 0. ये अपने को पता है because triangle बन नहीं रहा. One point, only one coordinate A is missing, which we need to find out with the help of this equation. जो equation यहाँ से बनेगी. Now area of triangle का formula apply कीजिए. Half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equal to 0. Have you learned this formula? Now solve it. Keep values. Half of x1. x1 is a multiplied by y2. y2 is minus 1 minus y3. y3 is 4. Plus x2. x2 is 1 multiplied by y3. y3 is 4 minus y1. y1 is 1 plus x3. x3 is 11 multiplied by y1. y1 is 1 minus from formula and value of y2 is minus 1. So this minus has come from formula and y2 is also negative 1. So minus multiplied by minus plus 1 equals to 0. Okay. Now can we shift this 2 which is in denominator here to right hand side with 0? It will come here in multiplication. वो multiplication में आ जाएगा और multiplication आते साथ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. So in our next step we can remove this 1 by 2 from left hand side because हमने इसको right side में shift कर दिया. 0 multiplied by any number gives 0. So solve it further. A multiplied by minus 1 minus 4 minus 5 plus 1 multiplied by 4 minus 1 3 plus 11 multiplied by 1 plus 1 2 equals to 0. Now solve it. Minus 5 multiplied by a gives minus 5a plus 3 multiplied by 1 3 plus 11 multiplied by 2 22 equals to 0. Like terms can be solved further. The constant terms are we can add them. So minus 5a plus 25 equals to 0. Minus 5a equals to shift this 25 to right side. It will become minus 25. Minus will be cancelled by minus. So value of a is 25 upon 5. 5 is a 5. 5 5s are 25. So value of a is equal to 5. So in this manner, with the help of this relation that if points are collinear, area of triangle comes 0. आपने सारे coordinates की value put करी और solve किया तो आपको एक equation मिल जाएगी in single variable. Okay, and how to solve a equation, a linear equation in single variable? It is very easy. Okay, so with the help of this, now we can solve it and value of a comes
5. So if points are collinear and one coordinate is missing, only one value is missing, so you can get value in this method. अब मान लीजिए यहाँ तो सिर्फ एक टर्म a मिसिंग था. सपोज अगर कोई एक वैल्यू और मिसिंग होती, मान लेते हैं यहाँ b है, इट इज b है, सो कि व्हाट विल हैपन. तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता था, फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन a एंड b. a और b में एक रिलेशन निकालिए अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है. इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर तो आप a और b में रिलेशन निकालिए. तो क्या मिलता, आप जब सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली लास्ट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a और b की फॉर्म में आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाती है. ठीक है ना. और हो सकता है क्वेश्चन ऐसा है 10th क्लास कि ये a है, ये b मिसिंग है. एक तो आपको बोल रहे हैं कि these three points are collinear, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी. मान लेते हैं इक्वेशन मिल गई a minus 2b equals to 7. ठीक है. और एक इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ से दे दी, इट इज गिवन दैट 3a minus b equals to 5. अब बोल रहे हैं फाइंड द मिसिंग टर्म्स a एंड b. a और b की वैल्यूज निकालिए. तो कांट यू फाइंड बाय सॉल्विंग these two equations? Have you remembered the concept of pair of linear equation in two variables? Chapter number 3. याद है ना, जैसे वहाँ वेरिएबल्स x और y में दो इक्वेशंस मिलती थी, वैसे यहाँ आपको a और b की फॉर्म में दो इक्वेशंस दी गई हैं. अब आप इन दोनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम होके आ सकता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉइंट्स आर कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 होगा. हो सकता है दो चीजें मिसिंग कर दी तो एक रिलेशन, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन ऑलरेडी दी भी आएगी. उन दोनों को सॉल्व करके जो मिसिंग टर्म है वो निकल सकता है. या फिर क्वेश्चन ये आ गया कि a और b में कोई रिलेशन फ्रेम कीजिए. तो इस तरीके से कई तरीके के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं. इसके अलावा अगर मान लीजिए ये आ गया कि p q and r आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल whose area is, जिसका एरिया दे दिया. मान लो क्वेश्चन में एक आ गया p q r forms a triangle whose area is 15 square units. Find a. Only a is missing. a निकालिए. Then also no problem at all. इस केस में क्या करेंगे, area of triangle is given 15. तो आप यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे as area of triangle is given 15 square units. So area of triangle का फॉर्मूला अप्लाई किया, इक्वल्स टू में 0 ना लिखे, जो एरिया आपको दिया गया आपने वो वैल्यू यहाँ रख दी. अब आप सॉल्व करके क्या मिसिंग टर्म a नहीं निकाल सकते हैं ऐसे. बिल्कुल पैटर्न वही है, बस पॉइंट्स कॉलिनियर ना देके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया गया. जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है तो वो आपने राइट साइड में वैल्यू रख दी. और इस तरीके से आप प्रोसीड करके आराम से जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इन दिस वे हाउ टू अप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला आई टोल्ड यू, एंड ऑलमोस्ट ऑल द एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 as well as in 7.4 also. I think question number 2nd or 3rd, I have not remembered exactly. A question is given in this pattern. ठीक है. तो आप वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. So I think with the help of these questions you can do your exercise 7.3. Okay. Now moving ahead further, 10th class in exercise 7.4 optional exercise, one or two concepts are a bit different from other exercise. Now as question number first of exercise 7.4, so I am giving you an example based on question number first of exercise 7.4 because that is a different question based on section formula. Okay. Now have a look at this example. Determine the ratio in which the straight line x minus y minus 2 equals to 0 divides the line segment joining 3 minus 1 and 8 9. Determine the ratio. आप देखिए determine the ratio ऑलरेडी हमने किया था exercise 7.2 में, लेकिन वहाँ पे आपको दिया हुआ था कि रेशियो फाइंड कीजिए अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. बट इन दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, रेशियो फाइंड कीजिए अगर ये स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है. मतलब कि AB इज द लाइन सेगमेंट गिवन टू अस. और जब आपने x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया कार्टेशियन प्लेन पे, अगर हम इसको ऐसे बनाएं कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस y एक्सिस, तो सपोज अपनी AB लाइन सेगमेंट यूज आ रही है. ठीक है. और ये लाइन इसका जो आपको ये इक्वेशन दी है इसका ग्राफ कैसे बन सकता है ग्राफ, बट विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन x minus y minus 2 equals to 0, a linear equation. ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना, लाइन स्ट्रेट रहेगी. तो ये जो x minus y minus 2 equals to 0 इस इक्वेशन का ग्राफ है वो
प्रॉब्लम इज ना तो आपको p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे और ना ही रेशो दे रखा, आपको रेशो फाइंड करना है। लेकिन यहाँ एक लॉजिक क्या समझ में आ रहा है आपको? इन 9th क्लास वी हैड स्टडीड दैट, अगेन लेट मी ड्रॉ दैट ग्राफ। आपने ग्राफ ड्रॉ की, ये मान लेते हैं कि ग्राफ है इक्वेशन x - y - 2 = 0। नाउ एवरी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन दिस ग्राफ, हर वो पॉइंट, हर वो कोऑर्डिनेट जो इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, क्या वो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली बिल्कुल होगा। इन द सेम वे हर वो पॉइंट, हर वो कोऑर्डिनेट जो इस लाइन पे आ रहा है, जो इस इक्वेशन का ग्राफ है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। दैट मींस जो पॉइंट P है, जो इस AB को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट P भी तो इस लाइन पे लाई कर रहा है। दैट मींस इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, एग्जैक्टली। तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ K। हम मानते हैं लेट रेशो भी K रेशो, हमने माना लेट रेशो बी K रेशो 1, हम मानते हैं K रेशो 1 में ये पॉइंट P इस AB को डिवाइड कर रहा है। ओके, अब बताइए, अब जब हमने रेशो K रेशो 1 ले लिया तो क्या आप सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ K? और वो जो कोऑर्डिनेट्स P के निकलेंगे, सपोज मैं कैपिटल X कैपिटल Y मान लेती हूं, जो इन दोनों की आप वैल्यूज निकालोगे, क्या हम x की जगह y की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। नाउ वी विल अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ कीप देयर वैल्यूज, वैल्यूज रखिए इनकी। x इक्वल्स टू m1 आपने क्या लिया k मल्टीप्लाई बाय x2 इज 8 प्लस m2 is 1 मल्टीप्लाई बाय x1 is 3 अपॉन m1 k प्लस m2 1। सॉल्व इट फर्स्ट ऑफ ऑल। 8 मल्टीप्लाई बाय k 8k प्लस 3 1 जा 3 अपॉन k प्लस 1। ये आपको मिल गई x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k बिकॉज़ रेशियो मिसिंग है। इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालिए m1k मल्टीप्लाई बाय y2 9 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई बाय y1 is -1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ सॉल्व इट। y इक्वल्स टू 9k 1 into -1 upon k plus 1। So in this way we got both the coordinates x as well as y. Now we know that x and y are the solution of this equation as well because point P, ये जो coordinates आपने निकाले हैं किसके coordinates निकले हैं? point P coordinates निकले। So x, y lies on graph of equation x minus y minus 2 equals to 0. So P x y is solution of equation के solution है। अब आप वैल्यू रख दीजिए x minus y minus 2 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आप x और y की वैल्यूज रख दीजिए। x will be replaced by 8k plus 3 upon k plus 1 minus y will be replaced by 9k minus 1 upon k plus 1 equals to 2. Solve it now. K plus 1 is LCM. Here we will get 8k plus 3. As negative sign is given here, that means both the signs will change. So 9k will become negative and 1 will become positive equals to 2. इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। 8k पॉजिटिव है, 9k नेगेटिव है, तो आ गया -k प्लस 3 plus 1 4 अपॉन k plus 1 को आप इधर शिफ्ट कर लें तो अपॉन में कुछ रहेगा ही नहीं। 2 मल्टीप्लाई बाय k 2k plus 2 1 का 2। So shift all the constant terms aside and variable terms aside। तो 4 को मैं यहाँ रख रही हूँ, 2 को वहाँ शिफ्ट कीजिए, -2 हो गया, इधर आ गया 2k, माइनस k को यहाँ ले आओ तो ये हो गया प्लस k। 2k plus 1k 3k equals to 4 minus
equal to 2:3. It means m1:m2 is 2:3. So it is a new concept. यहाँ देखिए रेशो फाइंड करना था कि ये लाइन इस AB को जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, बताइए किस रेशो में डिवाइड कर रही है। इस बार लाइन दे दी थी आपको इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, लेकिन पॉइंट जो पता है, कंसेप्ट जो क्लियर है वो ये है कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे आ रहा है, इस इक्वेशन के ग्राफ पे आ रहा है। मींस ये पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, और जब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है तो आपने इस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ k, बिकॉज़ हम लोग को रेशो पता नहीं है, हमने k रेशो कर लिया। अगर आप m1:m2 रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, उससे भी आंसर सेम ही आता। k रेशो लेने से थोड़ा सा इजी हो गया। इजी क्या हुआ कि एक ही वेरिएबल आया कि हम सॉल्व कर पाए। m1 m2 में कहीं कहीं हम मिस्टेक से m1 की जगह m2 को लिख दें तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने सेक्शन फार्मूला से x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये जो वैल्यूज आई हैं वो आपने इक्वेशन में रख दी। इक्वेशन में क्यों रखी? बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, ये उस इक्वेशन के ग्राफ पे आ रहा है, मतलब कि वो उसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। वैल्यूज रखी आपने, सॉल्व करके आपको आंसर मिल गया। सो रेशो इज m1:m2। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे जो थोड़ा सा रिलेट करेंगे इस चैप्टर से, लेकिन कुछ कांसेप्ट्स अलग होंगे, बिकॉज अभी अपन ने एक्स्ट्रा चीज तो ज्यादा करी नहीं इस चैप्टर में से। सो आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नाउ लास्ट कंसेप्ट और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, which is given in exercise 7.4। जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें ये कंसेप्ट दिया गया 7.4, तो हमें ये भी नहीं छोड़ना है। नाउ सी centroid, have you remembered this word centroid? What is centroid? Centroid is the point of intersection of all the three medians of a triangle। किसी एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है that is known as centroid। So now we will study how to derive formula for centroid of triangle। centroid के लिए फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करना है, अपन एग्जांपल के साथ करेंगे सॉल्व। मीडियन ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ AD median on side BC। suppose all the three coordinates are given to us। coordinate A is given x1 y1, coordinate B is given x2 y2, and coordinate C is given x3 y3। okay, in a triangle all the three coordinates are given। as I am deriving this formula, that's why I have taken coordinates x1 y1, x2 y2 and x3 y3। मुझे फॉर्मूला डेराइव करना है, इसलिए मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। ठीक है, आप कुछ और कोऑर्डिनेट ले सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, बट सी आई हैव टू डेराइव अ फॉर्मूला। नाउ विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ B and C, can we find coordinates of D? yes, what is D? D is midpoint of BC। so by applying midpoint formula we can find coordinates of point D। so first step is to find out coordinates of point D। for coordinates of point D, midpoint formula अप्लाई करेंगे। midpoint formula is x1 plus x2 upon 2, and for y it is y1 plus y2 upon 2। now solve it। x जो कोऑर्डिनेट्स हैं दिए हुए फाइंड कीजिए, x2 plus x3 upon 2, and for y it is y2 plus y3 upon 2। so in this manner we got coordinates of point D। D क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x2 plus x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2। okay, now what are the properties of median of a triangle? वो अपोजिट साइड में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करता ही है, उसके साथ साथ में जो सेंट्रोइड है ट्रायंगल का, सपोज P is centroid, so this centroids divides whole median in the ratio 2:1। this topic we have studied in 9th class also, याद है? median of a triangle is given, suppose या नहीं दिया, आप कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं A और D के, so we know that centroid वो पॉइंट होता है जो पूरे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इट मींस इट इज मेंशन्ड और इट इज गिवन दैट AP ratio PD is 2:1। AP ratio PD कितना है, 2:1। so can we go through section formula?
क्या हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से p की कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? सी ये भी दिया हुआ है और डी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला नाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। और p क्या है? p इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नाउ अप्लाई फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। x कोऑर्डिनेट में आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 upon m1 plus m2, and for y coordinate it is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Okay, now keep the values रखिए x coordinate में m1 2 m1 m2, m1 is 2 multiply by x2, x2 is x2 plus x3 upon 2 plus m2, m2 is 1 multiplied by x1, x1 is x1 only whole upon m1 plus m2। तो m1 कितना है 2 plus m2 कितना है 1। ओके, एनी प्रॉब्लम इन कीपिंग वैल्यू? देखिए m1 x2, m1 is 2 into x2, x2 is x2 plus x3 upon 2 plus m2, m2 is 1 multiplied by x1 upon m1 plus m2। now solve it। this 2 will be cancelled out, so x coordinate is equal to x2 plus x3 plus x1 into 1, x1 upon 2 plus 1 3। so here we have formula for centroid of triangle for x coordinate, can be write it as x1 plus x2 plus x3 upon 3। same process will be followed for y coordinate, so y is equal to m1 2 multiplied by y2, y2 is y2 plus y3 upon 2 plus m2, m2 is 1 multiplied by y1, y1 is y1 only upon m1 2 plus m2 1। it will be cut out, so y coordinate is equal to y2 plus y3 plus y1 upon 3। so y coordinate आ गया y1 plus y2 plus y3 upon 3। so it is derivation of centroid of triangle formula। अब देखिए फॉर्मूलाज आ गया आपके पास। अब मान लीजिए कुछ भी कोऑर्डिनेट ले, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ a are 2, 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b are -4, 7 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c are 8, -1 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन इज फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड कीजिए। तो आपको इतना करके नहीं दिखाना, कभी आप ये सारा कर लेंगे डायरेक्टली भी है फॉर्मूला। सो सेंट्रोइड ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल सॉरी, इसी कोऑर्डिनेट आपने मान लिया कैपिटल X कैपिटल Y। नाउ सॉल्व इट। कैपिटल X इक्वल्स टू x1 2 प्लस x2 -4 प्लस x3 8 upon 3। सॉल्व इट। 8 plus 2 10, 10 minus 4 6, 10 minus 4 upon 3, 6 upon 3 तो 2। so x coordinate आ गया 2। in the same way solve for y coordinate, so y is equal to y1 3 plus y2 7 plus y3 -1 upon 3। solve it। 7 plus 3 10, 10 minus 1 9, 9 upon 3। so y आ गया 3 और x आ गया 2। so centroid के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, 3। in this way we can find out centroid of triangle। ये क्वेश्चन बनना में कई बार आया है। if a b c are the vertices of triangle, find coordinates of centroid of triangle। तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, so by today I think we have studied almost all the concepts regarding chapter number 7 coordinate geometry। okay, we have studied distance formula, its application as well as derivation, then section formula, its application, derivation with midpoint formula, and then area of triangle formula, and today at last we have studied centroid of triangle formula, its derivation as well as its application। ठीक है, अब आई थिंक इस चैप्टर में लगभग सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड करी है बेटा। और अगर नहीं आपने क्लासेस अटेंड नहीं करे तो क्लासेस अटेंड कीजिए, वापस देखिए कोई डाउट रह गया तो, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है वो आप खुद ट्राई करें, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका समझ में आ जाएगी चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है ना, तो प्लीज
again in our next